Today I am going to teach you India's foreign trade. India's foreign trade. What is foreign trade? We have to understand first. Foreign trade is export and import of different goods and services across different countries of the world. What is the reason behind the export and import of goods and services? See, the basic reason behind the international trade is generating surplus. Generating surplus, that is the income. If domestic production is greater than domestic consumption, that means the country is generating surplus in the economy. If country is generating surplus in the economy, this surplus can be exported to other country, and this export is essential for earning money. And this money, that is the foreign exchange or the foreign currency, is used for importing essential items for the country which we cannot produce within the economy. So this is the basic reason behind, or this is a basic idea behind the foreign trade. So what is the importance of foreign trade? The first importance of foreign trade is it facilitates international specialization. It facilitates international specialization. What is international specialization? That means a country's specialization in the production of that good in which it can produce at a cost lower than other countries. That means country is producing something that is country can produce at a minimum cost. If a country can produce any good or services with minimum cost, that means the country has a specialization in that production. Then next benefit or next importance of international trade, it provides wider size of the market. Provides wider size of market. That means if domestic producers are producing something, that means they could sell their product in the domestic market as well as international market. It means it provides the wider market to them. Third importance is it provides investment opportunity for the trading partners. That means investment opportunity it is providing. What is investment opportunities? That means any country is getting investment from other country. That means if investment increases, that lead to increase in GDP of the country. So this is the reason, or this is the importance of international trade. Fourth importance of international trade means it helps in earning foreign exchange. Foreign exchange is nothing but the foreign currency. Fifth is it promotes equality of quality of life. That means now it provides a variety of goods and services to the people. So these are the importance of international trade. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये काफ़ी सारे हमारे फीचर्स हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर इज़ इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड importer of finished goods. So these finished goods are coming from Britain.
So what happened is basically Britain is using India's natural resources for its industrial output, and that industrial output leads to industrial development in Britain. Next is India's balance of trade was in surplus. So what is balance of trade? Balance of trade is nothing but the export minus import, and surplus means export is greater than imports. Basically India was exporting raw material. अगर इंडिया रॉ मटेरियल, हमारा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रही है और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रही है, ये हमारा सरप्लस तो है, ये हमको शो तो कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये जो सरप्लस है ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एंड इफ इट इज एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट मीन्स इट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री. It shows the backwardness of the country. So this was the condition. And the third is that India's trade was restricted between India and Britain. That means कि जो हमारा जो ट्रेड है, बेसिकली जो हमारा ट्रेड है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है बट अनडाइवर्सिफाइड है. दैट मीन्स अगर हमको जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में ही कर सकते थे, हम किसी और कंट्री में नहीं कर सकते थे. तो ये क्या शो कर रहा है, ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है जो ब्रिटेन है बेसिकली ये अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे थे, ना कि इंडिया के बेनिफिट के लिए. लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जितनी भी कंडीशन थी ये सारी कंडीशन चेंज हो गई और फिर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी चेंज हुई और इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो इंडिया के कुछ फेवर में आया. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो हमारा फर्स्ट फीचर है decline in percentage share of agriculture export. That means now India exporting less item of agricultural commodities and we are more exporting manufactured goods. So first and foremost feature is decline in percentage share of India's agriculture export. वाई दिस इज हैपनिंग? इसके दो रीज़न हैं. पहला रीज़न इसका क्या है? पहला रीज़न ये है कि बिकॉज अब जो है इंडिया का जो डोमेस्टिक जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है दैट मीन्स इंडिया के जितने भी अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर नाउ यूज्ड बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. दैट मीन्स अब ये जितनी भी हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ हैं अब ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. पहला तो रीज़न ये है. सेकंड रीज़न इसका क्या है? बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली बिकॉज जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ उन्होंने जो ऐसे मेजर्स लिए, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो भी उन्होंने मेजर्स लिए उसकी वजह से क्या हुआ, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं हमारी कंट्री में वो इंक्रीज़ होने लगी. जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होने लगी दैट मीन्स अभी जो क्या हमारी कंट्री में क्या है, डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होने लगा. डेथ रेट अगर डिक्लाइन होने लगेगा तो हमारी कंट्री में क्या हुआ कि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होने लगी. पॉपुलेशन जब हमारी कंट्री में कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होने लगी दैट मीन्स हमारी कंट्री में जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी कंट्री में इंक्रीज़ हो जाएगा दैट मीन्स अब हमारी कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है. दैट लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन.
और इस प्रोडक्शन के लिए हमको नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। तो इसीलिए हमारी कंट्री में जो परसेंटेज शेयर था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का वो हमारा डिक्लाइन होने लगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है हमारा इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। दैट मीन्स अब हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड को हम एक्सपोर्ट करने लगे। अब हम जितना भी मैन्युफैक्चर गुड एक्सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में अब स्ट्रक्चरल चेंज आया। स्ट्रक्चरल चेंज आया इसका मतलब क्या है कि नाउ द शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर बोथ आर इंक्रीजिंग। सो ये हमको क्या शो करता है कि ये अब के एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो थोड़ा सा उसका जो शेयर है वो डिक्लाइन होने लगा है, और नाउ हमारी कंट्री में जो स्ट्रक्चरल चेंज है और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ गया है। तो ये हमारी कंट्री में क्या शो करता है, ये शो करता है प्रोग्रेस। इट शोज द प्रोग्रेस इन द कंट्री। थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है दैट नाउ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इज चेंजिंग। दैट मीन्स कि पहले जो हमारा जो ट्रेड जो रेस्ट्रिक्टेड थे, अभी हमारा ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। दैट मीन्स अब हमारा जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड ट्रेड का क्या मतलब है, दैट नाउ इंडिया इज ट्रेडिंग विद डिफरेंट कंट्रीज सच एज UAE, चाइना, USA, UK एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था जो हमारी कंट्री में, जो इनका ब्रिटेन का जो हमारे कंट्री में जो इन्फ्लुएंस था वो अभी इन्फ्लुएंस जो है वो डिक्लाइन हो गया है। और अब हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। नाउ आवर ट्रेड इज डाइवर्सिफाइड। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी और दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी और स्ट्रैटेजी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स दैट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच द इकोनॉमी हैज़ बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। That means now country is more focusing upon, the major focus is on domestic production rather than importing from other country. बेसिकली गवर्नमेंट जो था वो क्यों कर रही थी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्यों कर रही थी, बिकॉज इसके दो रीज़न थे, मेजर जो रीज़न थे वो इसके दो थे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट किसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री से किससे प्रोटेक्ट कर रही थी, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही थी इंटरनेशनल कंपटीशन से। बिकॉज अभी क्या हो रहा था कि धीरे धीरे हमारी कंट्री में, बिकॉज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट हो चुकी थी, रून हो चुकी थी, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि धीरे धीरे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी सो दैट दे कुड प्रोड्यूस मोर। और ये जो कंपटीशन है अभी इतनी जो इनिशियल स्टेज है उसमें कंपटीशन को ये नहीं हैंडल कर पाएंगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं ये शट डाउन हो सकती हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी निकाली, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। दैट मीन्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। दैट इज़ द रीज़न, this is the first reason, and the second reason is to save foreign exchange. Foreign exchange is nothing but the foreign currency. तो हमारी कंट्री क्यों करना चाहती थी फॉरेन एक्सचेंज सेव, बिकॉज हमारी कंट्री पास फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी कम था, और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है ये हम कैसे यूज़ कर सकते थे फॉर यूटिलाइज दिस foreign currency for developmental imports. Foreign currency for developmental imports. What is developmental imports? जो कि जितने भी ऐसे गुड्स हैं जो कि हमारी कंट्री डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ऐसे कुछ गुड्स हैं जैसे कि आप मान लीजिए मशीनरी है,
या फिर ऐसे बहुत सारे जो आइटम्स हैं जो हमारी कंट्री डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वो हमारी कंट्री क्या करेगी, बाहर से इंपोर्ट कर सकती है। तो जो ये फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन करेंसी है, ये एक्सट्रीमली स्केर्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये फॉरेन एक्सचेंज को सेव करा जाए ताकि जितने भी डेवलपमेंटल इंपोर्ट हैं वो कर सके। सो ये जो बेसिकली इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का जो क्राइटेरिया था और ये क्यों किया, इसका ये रीज़न था। लेकिन गवर्नमेंट कर कैसे रही थी, जैसे कि इनवर्ड लुकिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर कैसे रही थी गवर्नमेंट, हाउ, कैसे कर रही थी? इसके दो मेथड थे। पहला तो है टैरिफ और दूसरा है हमारा कोटास। व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ इज imposing टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। अब हो क्या रहा है कि अगर आप बाहर से कोई भी आइटम मंगा रहे हैं और उस पर आपने टैक्स लगा दिया है, दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ दैट गुड एंड दैट प्राइस बिकम very costly, and because this item become very costly, so demand for this product will decrease। तो बेसिक गवर्नमेंट का जो रीज़न था, जो बिहाइंड इसके जो क्यों कर रही थी, रीज़न ये था कि जितने भी इंपोर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा महंगा कर दिया जाए ताकि जो बाहर से जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज़ हो सके। अगर बाहर से जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बिकॉज रिलेटिवली जब इन पे टैक्स लग गया, इनका प्राइस इंक्रीज़ हो गया, ये कॉस्टली हो गए और इनकी डिमांड फिर डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये रिलेटिवली चीपर हैं तो इनकी डिमांड क्या होगी, इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बेसिक जो रीज़न था गवर्नमेंट का टैरिफ लगाने का वो ये था। कोटा क्या होता है कि आप जो इम्पोर्ट की जो क्वांटिटी होती है उस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। दैट मीन्स कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चीज़ है वो 100 टन ही आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अलग क्राइटेरिया है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप बाहर से इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, दैट मीन्स इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज गुड इफेक्ट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। दैट मीन्स इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने जो यूज़ करी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके कुछ गुड इफ़ेक्ट्स भी थे। पहला गुड इफ़ेक्ट है उसका हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दैट मीन्स नाउ द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड इन द जीडीपी ग्रोथ। तो पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में जो शेयर था 1951 में वो हमारा अप्रॉक्स 12% था, लेकिन आफ्टर दिस इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी दिस शेयर इन 1991 इंक्रीज टू 25%। तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए इसकी वजह से। सेकेंड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्या मतलब है, क्योंकि पहले हमारी जो कंट्री में थे जितने भी जो प्रोडक्शन थे कुछ सिलेक्टेड गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे थे पहले, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जितने भी जो गुड्स हैं वो अभी थोड़े से इस पॉलिसी की वजह से डिफरेंट गुड्स भी प्रोड्यूस होने लगे। फॉर एग्जांपल जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होने लगे, और जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं उनका भी प्रोडक्शन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, पहले जो हमारी जो कंट्री थी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पहले इंटरनेशनल कंपटीशन को नहीं फेस कर सकती थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि जैसे ही हमने जो रेस्ट्रिक्शन इन पे लगाए तो अभी क्या हुआ, ये सब चीज़ें होने लगी। दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इंजीनियरिंग गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। थर्ड है हमारा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट।
अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी। जब उन्होंने प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि क्योंकि मैंने आपको बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट इज़ अप टू द 5 करोड़ रुपीज़। सो इसका मतलब क्या है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत कम है, तो अब जितने भी जो लोग हैं उसमें क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए तो और प्रोटेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी न्यू इन्वेस्टमेंट है इसमें आएगी, क्योंकि अब कोई भी जो इंडस्ट्रीज़ है वो इजीली लगा सकता है, छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्री वो लगाना चाहे वो लगा सकता है, जिसकी वजह से न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी। जैसे ही न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी दैट मीन्स हमारी कंट्री में जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारी कंट्रीज में दैट मीन्स इट प्रमोट्स द ग्रोथ विद इक्विटी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, उसके जो गुड इफ़ेक्ट्स हैं। पहला है हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इट लीड टू डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज ट्रेमेंडसली। लेकिन अब इस वाली जो पॉलिसी है, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, इसमें गुड इफ़ेक्ट्स के अलावा कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी थे। पहला है हमारा जो बैड इफ़ेक्ट है वो है ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था 1956 में जो हमारी जो इंडस्ट्रियल ट्रेड पॉलिसी रेजोल्यूशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेके आया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी कंट्री में जो है आईपीआर जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, और जितने भी जो मेजर जो सेक्टर थे उन्हें पब्लिक सेक्टर के लिए और पब्लिक इंटरप्राइजेज़ के लिए उन्होंने रिजर्व कर दिया। अब जब उन्होंने पब्लिक इंटरप्राइजेज़ के लिए उन्हें रिजर्व कर दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी एक तरह से मोनोपोली हो गई थी। जब इनकी मोनोपोली हो गई दैट मीन्स इनको पता है कि कोई भी इनको आके इनको कंपटीशन नहीं देने वाला है, तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो पब्लिक इंटरप्राइजेज़ हैं बहुत ही इनएफिशिएंट तरीके से वर्क करने लगी। इनएफिशिएंट तरीके से वर्क करने की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करप्शन भी हो गया। तो ये पहला एक बैड इफेक्ट है जो कि है हमारा इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। सेकंड है हमारा लैक ऑफ कंपटीशन, लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन लीड्स टू लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब हुआ क्या, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई थी, जब उनको कोई कंपटीशन है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि वो उनको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए अच्छी मशीन्स लगाने के लिए कोई उनके पास कोई इंसेंटिव है ही नहीं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स हैं वो ये लोग कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करने लगे, तो जिसकी वजह से जो कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। देन थर्ड है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हुआ क्या कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ईजीली प्रोड्यूस कर सकता था वहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे मान लीजिए जैसे ब्रेड हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ हो गया, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन फिर भी इसके लिए भी इनके प्रोडक्शन के लिए भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ही चूज़ किया गया और इनको रिजर्व किया गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ इरैशनल यूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, इरैशनल यूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। ऑलरेडी हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्केर्स हैं और उसके बाद भी हमने इन रिसोर्सेज को बहुत ही इरैशनल तरीके से हमने यूज़ किया, तो ये एक इसका ड्रॉबैक रहा है। सेकंड जो था कि जो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। इट डिक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइवेट सेक्टर।
अब प्राइवेट सेक्टर जनरली क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करता है। तो अगर ये प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करता है, इसका मतलब क्या है कि ये अपनी एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब भी एफिशिएंसी पे ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या है, ये लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं। जब भी ये लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर मोर एफिशिएंट। सो इनकी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। और फोर्थ जो बैड इफेक्ट है वो है कि जो एक पॉलिटिकल कंपल्शन बन गया था। पॉलिटिकल कंपल्शन का क्या मतलब है, बिकॉज होता क्या है कि अगर प्राइवेट सेक्टर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको क्या होना पड़ रहा था, वो शट डाउन हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर हैं, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, इनके यूनियंस कुछ बन गए थे। और अगर ये लॉस मेकिंग है, ये एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, इनएफिशिएंट तरीके से वर्क कर रहे हैं और ये लॉस मेकिंग है, स्टिल जो गवर्नमेंट है उनको शट डाउन नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन। पॉलिटिकल कंपल्शन का क्या मतलब है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, इन्होंने अपनी यूनियंस बना ली हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लगी थी कि आप सोशल इनजस्टिस कर रहे हैं। जितने भी वर्कर्स हैं, अगर आप इन इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन कर देंगे तो जो वर्कर्स हैं इनको आपको निकालना पड़ेगा, और जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं इनके साथ क्या होगा, इनजस्टिस होगा। So this is the bad effects of this inward looking policy. So this chapter is over now.